جھوٹ ایک بری عادت ہے اور جھوٹی قسم اٹھانے والے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور تب تک دور رہتا ہے جب تک تم باوضو ہو۔ بے وقوف شخص کے دوست بننے سے گریز کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا بھی چاہے گا تو بھی قوی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے۔ اگر مخلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے؟ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں کی آمیزش ہے تو یہ اس کمائی کو حرام ہی کہا جائے گا، کیونکہ حرام کا غلبہ حلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عبادات میں خالص پن اور خشوع و خضوع کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ دو۔ 3 چیزوں کو اپنانے سے آپس کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ کھانے کی عادات میں بھی اعتدال پسند رہو، کیونکہ زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور روح ویران ہو جاتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں کامیابی کی چاہت رکھتے ہو تو محض امید رکھنے سے وہ معاملہ سر انجام نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پر کامل یقین اور معاملات پر عمل پیرا ہونے کا صحیح علم موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی ذات میں موجود کسی خرابی یا کمی سے آگاہ کرے، اسے برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر تم غصے میں ہو تو بھی تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مردان کی ہے۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ تم وہاں سے صرف بری عادات ہی سیکھو گے۔ جو شخص تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس سے الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ اچھے دوستوں کو تلاش کرو، اور یقیناً اس دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ بندوں سے مشورہ کیا کرو۔ جو شخص تقوی کو اپنی طبیعت کا لازمی جزو بنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو کنجوسی سے نفرت ہے اور سخاوت سے پیار ہے۔ اگر ایک کنجوس شخص بہت تقوی والا ہے تو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب سے دور ہے، جبکہ ایک سخی شخص دینی معاملات میں بھلے کسی حد تک کمزور ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو عزیز ہے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانتداری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے
तो तौबा भी नहीं करना पड़ेगी। तौबा के वक्त की नदामत को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि गुनाह का इरादा ही खत्म करो। गुनाह करने से बचना चाहिए, भले गुनाह निहायत मामूली ही क्यों ना लगता हो। इसी तरह हर वक्त नेक अमाल करने की कोशिश में रहना चाहिए। और नेकी तो इस कदर आसान है कि किसी शख्स को मुस्कुराकर मुखातिब कर लेना भी नेकी के जुमरे में आता है। इस दुनिया में रहते हुए लोगों के रुतबे की बराबरी करने की कोशिश हमें गरीब बना देती है, जबकि मामलात में मयाना रवि से बर्ताव करना हमें मालदार बना देता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आने के बाद अगर तुम्हें एक नेक और फर्माबरदार अहलिया मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहले ईमान को ऐसे नवाजते हैं। जो शख्स मामलात के इख्तिताम को नेक अंदाज में करने की अहलियत रखता हो वही दाना है और वही कामयाब है। अपनी तबीयत को संजीदा रखो। हर वक्त हंसते रहना रूह को मुर्दा कर देता है और इंसान अपनी मौत को याद रखना भूल जाता है। इस दुनिया में वक्त गुजारते हुए जहन्नुम को ना भूल जाओ, क्योंकि इस दुनिया की लज्जत तो वक्ती है, लेकिन जो शख्स अल्लाह सुब्हाना व तआला की रजा के खिलाफ अमाल करेगा उसे जहन्नुम में हमेशा ही रहना होगा। और जहन्नुम एक होलनाक सजा है जिसमें इंसानी सोच से ज्यादा दर्दनाक अज़ाब है। अगर किसी शख्स के मामलात में खराबी देखो तो उसे बुरा भला कहने से गुरेज करो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी मुआशरती खराबियां पैदा होने का खदशा है। मुफलिसी का शिकार शख्स अपनी बात कहने से डरता है, इसलिए उसके साथ अच्छे इखलाक से पेश आओ ताकि वो अपना मौक़िफ़ खुलकर बता सके और तुम उसकी जरूरत को पूरा कर सको। अगर इस दुनिया के कयाम के दौरान अहले इल्म की बातें भी तुम्हें राह रास्त पर ना ला सकी तो फिर मौत की एक ऐसी नसीहत है जो तुम पर असरअंदाज होगी। अदलो इंसाफ के मामलात अगर दुरुस्त तरीके से चल रहे हों तो कोई जालिम सजा से नहीं बच सकता और कोई मजलूम अपनी दादरसी करवाए बगैर नहीं रह सकता। जो शख्स किसी बुराई के बारे में ये आगाही ना रखता हो कि ये बुराई है तो वो यकीनन उस बुराई में मुब्तिला होगा। जितना इस दुनिया के मामलात में खुद को कम उलझाओगे उतनी आसानी से इस जिंदगी को बसर कर पाओगे। अक्लो दानिश का पैमाना इंसान की उम्र नहीं बल्कि ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की अता और कर्म नवाजी है। वो जिस शख्स को चाहे अक्ल सलीम और जहानत से नवाज दे। हमें खुद को गुनाह के कामों और बदअखलाकी से बचाना चाहिए। शर्मिंदगी और पछतावे की चार इकसाम होती हैं। एक दिन का पछतावा ये है कि आपके यहां कोई मेहमान आए और खाना खाए बगैर चला जाए। एक साल का पछतावा ये है कि आपको अपनी जरी जमीन में कुछ बोना था, लेकिन आप अपनी किसी मसरूफियत या सुस्ती की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। सारी उम्र का पछतावा यह है कि आपका मिजाज अपनी बीवी से ना मिलता हो। और हमेशा हमेशा का पछतावा यह है कि आपका रब आपसे खुश ना हो। जब कभी खुद को मुश्किलात में गिरा हुआ पाओ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से मदद तलब करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन मददगार है। एक बाकिरदार और मुअज़्ज़ज़ इंसान की निशानी यह है कि अगर उसका मुकाबला अपने से कमजोर इंसान से हो तो ऐसे में खुद को दस्तबरदार कर ले। बेजा ख्वाहिशात की पैरवी करना तमा है, और जो इंसान तमा का शिकार हो उसे मुफलिस बनने से
कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया के लोगों से कोई उम्मीद वाबस्ता ना करना असल अमीरी है, जबकि बदला ना लेना सब्र है। फजूल खर्ची में ये अंसर भी शामिल है कि इंसान अपनी मनचाही चीजों को खाने लगे। जिस शख्स के बारे में नफरत अंगेज जज्बात रखते हो, उसके शर से खुद को महफूज रखने के लिए कोशिश करते रहो। जो लोग गुनाहों से तौबा कर लें, उन्हें दोस्त बनाओ, क्योंकि ऐसे लोग नर्म दिल होते हैं और उनमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का खौफ बहुत ज्यादा होता है। बूढ़े हो जाने से पहले इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म का हुसूल तब ही फायदामंद है जब इसे अमली जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई शख्स आपके साथ नेकी का मुआमला करे, तो जवाबन आपको भी उसके लिए नेकी का मुआमला ही करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही उसके नेक अमल को सही अंदाज में जवाब दिया जा सकता है। जबकि अगर कोई शख्स आपके साथ बुराई का सलूक रवा रखे और जवाब में आप उसके साथ नेकी का मुआमला करें, तो ये आपका उस शख्स पर एहसान होगा। अल्लाह वालों के पास बैठना चाहिए, उनकी सोबत में वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक होगा तो जब आप राहत के दिनों से गुजर रहे होंगे तो ये ताल्लुक आपको भटकने नहीं देगा, और गम के दिनों में इस ताल्लुक की वजह से आप सब्र का दामन थामे रहेंगे। इस दुनिया में कामयाबी का पैमाना मालदार होना है, जबकि आखिरत में कामयाबी का पैमाना यह है कि इंसान ने दुनिया में अपने कयाम के दौरान किस मिकदार में अच्छे अमाल कर रखे हैं। अपनी जिंदगी के मराहिल में अगर तुम्हारे पर जवानी है तो बुढ़ापा आने से कबल इसकी कदर करो। इसी तरह अगर तुम बुढ़ापे से गुजर रहे हो तो मौत से कबल इसकी कदर करो। मुंसिफ को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि मुकद्दमात का फैसला बर वक्त सुनाया जाए, क्योंकि इंसाफ के मामलात में देरी का नुकसान ये होता है कि इंसाफ का फायदा ही खत्म होकर रह जाता है।